Uh, First of all, very good morning to all of you, and welcome to Vinod Makwana sir and all the panelists. Today we have some special panelists from the GP Palanpur, Dr. B.B. Moore sir. Uh, It is a surprise. yes, surprise for you, sir. And today we are we have a eminent speaker, Mr. Vinod Makwana sir. Uh, he's lecturer in the power electronics department, and he has vast experience for uh, teaching as well as research also, and he's very active member, and we have done so much work with him. So hope you will enjoy the hope you will enjoy. And just 1 minute, 1 minute, sir. Please give me. More, sir. Very good morning. Okay. First of all, very good morning, and speaker itself not need to introduction because Makwana sir is very famous in all over Gujarat. Uh, I hand over to him, and hope you enjoy the journey to the journey of the semiconductor, and hope you will learn something, and it will be useful to your features also, especially for students. And, right now, I am hand over to Makwana sir. Thank you, sir. And I am surprised that Professor Bhupendra Moore is already available. Thank you, sir. And Dr. G.S. Patel, Sailesh sir, even Urvi madam, all are there. It will be my pleasure to say something, all participants. इनिशियली गौरांग सर हैज प्लान दिस सीरीज, तो हमने सोचा कि भाई चलो कुछ दिखाते हैं बच्चे को क्या कुछ मार्केट में चल रहा है. सो विल ट्राई टू हाईलाइट सम पॉइंट्स. It may be useful to all the attendees. And let's see what is there in the semiconductor material and the scope of the materials, applications of the materials. So I think it is visible to you all, my PPT. Is it okay? Yes. Okay. So the semiconductor applications, right? Some 3-4 objectives that I tried to cover up, जैसे कि participants will be able to understand what it will, they will understand कि भी semiconductor device को थोड़ा समझेंगे various. Then they will also understand applications of semiconductor, जो कल भी शैलेश सर ने कुछ applications दिखाई थी. उसके बाद they will be able to analyze and identify, कुछ analysis भी कर सकते हैं भी कितने सेमीकंडक्टर्स है, किसको कहाँ यूज करना है, वो सब आइडेंटिफिकेशन. देन लास्ट ऐसा भी रखा है कि दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन स्मॉल और मिनी प्रोजेक्ट्स. Basically, this seminar is focused for the second semester or maybe first year students. Some others may also invited. So उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जो प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं. So in content, some scenario of the semiconductors, then the expansion, then some applications. Applications में हमने रखा है कि diode may be there, transistor may be there,
operational amplifier may be there, optocoupler is also there, microcontroller, then some power electronics devices, MOSFETs and all that, power converters, renewable energy, as well as G2V to V2G, to G2V, as well as some V2H is also available nowadays. And last very important device, silicon carbide, वो भी हम थोड़ा देखेंगे. Are not listed here. One applications of semiconductor device in a project, वो भी एक लिस्ट रखा है मैंने कि बच्चे क्या बना सकते हैं, है ना. इसमें इफ यू सी ऑन द कंटेंट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो सब लोअर रेटेड रेटिंग वाले डिवाइसेस है. ऑन द राइट हैंड साइड जो पार्ट्स है वो सब हायर रेटिंग डिवाइस, वो भी देखेंगे. सो आगे जाते हैं तो मार्केट सिनेरियो सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें यू कैन सी $481 billion in 2018. This was the market scenario, है ना. 1 billion is around 100 crores in Indian rupee. तो सेमीकंडक्टर का जो ग्रोथ है, you can say in design or in manufacturing or many other aspects, बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं, कंपनियां बहुत सारी इसमें पैसे बना रही है. Indian point of view, if you see, then you will also find $52.58 billion, है ना, US में लिखा है. So market of semiconductor material is very high, right? Then you will see some expansion of semiconductor. Here in 1950 क्या कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास थी. 1960, 70, 80 up to आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, you will get smartphones. Nowadays you also listening smart cities. Some electrical engineers, those who are doing research, उसको smart grid भी पता है अभी तो. Smart vehicles भी आ गया. So many things are there. Then ये जो स्लाइड है उसमें मैंने ट्राई किया है कि कहाँ कहाँ पे सेमीकंडक्टर लग सकते हैं. तो सेमीकंडक्टर देखने के लिए आप देखो डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो. वैक्यूम क्लीनर, यूपीएस, कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग, सभी जगह पे देयर इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल. अगर कोई सोचता है कि भाई मैं सीमेंट मिल में यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, यस, सीमेंट मिल में भी हो जाएगा अगर कोई इंडस्ट्री में जॉब करता है. एलिवेटर्स, मैनी मोर प्लेसेस, सबवे कार, सी, है ना, ऑटोमेटिव एंड ट्रैक्शन, शिप बिल्डिंग. कोई इंजीनियर बन के डिफेंस और एरोस्पेस में जा रहा है, देन ऑल्सो ही हैज टू फेस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना. तो ये यहाँ पे भी वो भी लग सकता है. somebody is in electrical side, है ना, तो देन सम रिसर्च साइड, डिजाइन साइड, तो स्मार्ट ग्रिड से लेके आप फैक्ट डिवाइस, एचवीडीसी, सब जगह पे you will find the applications. The most popular application of semiconductor belongs to the renewable energy, है ना, where the solar as well as wind you will get. So ये सभी जगह पे हमारी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज होती है. जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि एक पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, बस एक डायोड बन गया और क्या, वो फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, बट उससे ज़्यादा बहुत कुछ है ना. विल सी इट. तो आप यूं मत सोचो कि भाई एक डायोड पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, ऑन ऑफ करना है, सर्किट बनाना है, मार्क्स ले लेने हैं, देन इट्स ऑल ओवर, है ना. इट्स नॉट लाइक दैट. The next, let's see, there is a bag. ये गूगल में से मैं सब ढूंढता था तो मुझे एक बैग मिल गई. फिर सोचा कि जैसे डॉक्टर अपनी बैग रखता है वैसे इंजीनियर को भी अपनी एक बैग रखनी चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, है. अपनी छोटी किट होनी चाहिए. सो ये बताने के, ये मैसेज कन्वे करने के लिए ये बैग रखी है. और दूसरा मैसेज ये भी है कि आगे की स्लाइड में भी क्या कुछ ओपन होने वाला है. लेट्स सी विच आर द डिवाइसेस, ये कहाँ कहाँ कैसे हमको यूज करना है, वो ये बैग में रखना है. और वैसे एक इंजीनियर बन रहे हो तो मुझे लगता है कि छोटी बैग तो होनी चाहिए हमारे पास. देयर मस्ट बी सम कंपोनेंट्स, देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास थ्रू रूटीन लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ होना चाहिए.
देन विल गो बैक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आप सब इतना डर मत जाओ कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ये भाई आपने पहले लेक्चर में मैडम पूर्वी मैडम ने पढ़ाया था, फिर शैलेश जोरियानी सर ने पढ़ाया था। तो आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यू नो, आई होप दैट यू नो दैट। मुझे एक बात याद आई थी कि ये एक्चुअली स्पीच का एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में जो है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ और मेरा फैन और ट्यूबलाइट चालू ऑन कंडीशन में। अभी मुझे ऑफ करना है लेकिन मुझे खड़ा नहीं होना। आई वॉन्ट टू सिट एंड उसको ऑफ करना। लेकिन उसकी एक स्विच लगी हुई है जो वहां जाने के सिवा आप बंद नहीं कर सकते। बैठे बैठे वहां जाना पड़ेगा। यू हैव टू स्विच ऑफ, फिर स्विच ऑन, स्विच ऑफ, आपको खुद जाना पड़ेगा। Same to same in industry, there are so many instruments, machineries, motors, many things are there. तो सभी को आप वन बाय वन जाके चालू करेंगे बंद करेंगे ऐसा तो कर नहीं सकते। तो जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने ऐसा सोचा होगा, फिर इसको दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई चलो ऐसा कुछ डिवाइस बनाते हैं जो अपने आप चालू हो जाए और अपने आप बंद हो। So this is a simple diode. If you provide proper input voltage to the anode, the diode will be turn on and it will be closed. अगर आप उसको रिवर्स वोल्टेज डालते हो तो then it will be open. That's all. So then automatically it can be turn on and it can be turn off. तो यही एक बात थी कि ये जो स्विच है ना, ऐसी लग रही है कि एक डायोड लगा हुआ है जिसमें आप यू कैन सी द कर्सर ऑफ माय कंप्यूटर दैट देयर इज अ पी टाइप मटेरियल, देयर इज एन टाइप मटेरियल एंड द डायोड। लेकिन ये पी है, ये एन है, उसमें और मैं एक पी लगा देता हूँ। सी, ये सब मैंने नहीं लगाया, वो इंजीनियर जिसने डिजाइन किया उन्होंने पहले सोचा होगा कि भाई चलो एक ऑन एन लगा के देखते हैं व्हाट विल हैपन। इफ दे हैव कनेक्टेड अनदर एन टाइप ऑफ मटेरियल अलोंग विद द पी एंड एन, तो उसको कुछ नया मिल गया। क्या नया मिल गया? दो पी एन हो गए। देखो, पी एन वन एंड एन पी सेकेंड, इट मीन्स टू डायोड्स वेर कनेक्टेड। तो क्या बन गया? ट्रांजिस्टर बन गया, एक नया डिवाइस मिल गया। और किसी ने सोचा कि भाई चलो इसमें हम ये लगाते हैं, ये जो येलो कलर का है उसमें एन साइड यहाँ पे है, पी साइड और एन साइड, और बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ दिया। देखो यहाँ जो एन चैनल लिखा हुआ है कि भाई पी और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो मूव करेंगे तो उसको यहाँ पे भी एक रास्ता दे देते हैं। चलो व्हाट हैपन, लेट्स सी। देन दे फाउंड आउट सम अनदर डिवाइस व्हिच इज नोन एज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। Then it was converted into junction field effect transistors. Then it was converted into the MOSFETs, right? Then उसके बाद ये थर्ड वाला सर्किट है, उसमें देखो ये MOSFET और ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों है। MOSFET और ट्रांजिस्टर ये दोनों है। दोनों को, एक ये MOSFET और ये एक ट्रांजिस्टर, ये यहाँ MOSFEट आ गया और ये ट्रांजिस्टर आ गया, दोनों को कंबाइन कर दिया। देन व्हाट दे डिड कि भी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ MOSFET, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ट्रांजिस्टर, चलो इस दोनों को कंबाइन करते हैं, कुछ और नया मिलता है। तो हमको एक मिल गया IGBT, है ना। IGBT ऐसा एक डिवाइस है, अभी इंडस्ट्री में इसकी धूम मची है। जो भी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी अदर फील्ड का है जो इंडस्ट्री में काम करता है उसने IGBT सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप आगे जाके सुनेंगे कि IGBT एक ऐसी स्विच बनी हुई है जिसके कारण सो मैनी सर्किट्स कंट्रोल कर रही है, सो मैनी मशीन्स कंट्रोल कर रही है IGBT। तो ये सब बातें हैं जो एक छोटे से डायोड में से निकली हुई है। और आगे जाके आप देखेंगे कि ये मैंने और पी लगा दिया यहाँ। तो पहले तो मेरा पी और एन था, फिर मैंने पी एन पी बना दिया, देन आफ्टर मैंने और एक पी डाल दिया। तो अभी ये दो कर दिए, पी एन, ऐसा भी एक स्ट्रक्चर बन गया है। इसको पॉपुलरली इंडस्ट्री में बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स, दैट इज SCR। और इसकी भी पूरी एक फैमिली है। अगर आप इंडस्ट्री में जाओ या कुछ रिसर्च करो या सर्च करो तो उसकी भी एक फैमिली है। और ये सबका, वो मैं बोलूँ ना, ये सबका सबसे बड़ा भाई है।
क्योंकि जो मेजर पावर प्लांट और सब जगह पे होते हैं जहाँ पे हाई रेटेड वोल्टेज, हाई रेटेड करंट्स, वो सब चलता है, मेगावाट में चलता है। तो ये आप नहीं मान सकते, ये जो हमारा छोटा डायोड था, जब इन द सेकंड लेक्चर वी स्टडीड दैट द करंट रेटिंग ऑफ द डायोड वाज हार्डली 1 एम्पियर इन केस ऑफ 4007। लेकिन इसकी बात करने जाए आप तो ये 3000 से 3500 तक का रेटिंग दे सकता है। 3000 एम्पियर करंट जो सबसे ज्यादा है, वो अकेला एक एक एससीआर दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो सोचो, ये सैंपल एक पी और पीएन को जुड़ा के हमने इतना बड़ा एक डिवाइस बना लिया, जो पावर प्लांट, आइदर थर्मल और एनी अदर प्लांट में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंट्रोल करने वाली सर्किट लगती है, तो वो सभी जगह पे ये इतने हाई रेटेड डिवाइसेस काम आए। सो व्हाट आई फाउंड कि भाई एक सिंपल गूगल से लिया हुआ सर्किट है, यू विल सी देयर आर सो मेनी डायोड्स, सो मेनी एलईडीज, कैसे दिखते हैं, है ना, कितने लेग्स होते हैं, क्या कुछ। ये देखो मेरा कर्सर है, वहाँ पे एक वाइट कलर का सिल्वर लगा हुआ है, वहाँ को कैसे नट बोल्ट से कैसे फिट करना है वो सब रहता है इसमें, है ना। सभी डिवाइसेस यू कैन सी, यहाँ पे एससीआर है, मॉसफेट्स है, आईजीबीटीज है, ट्राइक्स है ना, सो मैनी थिंग्स आर देयर। फिर मैंने क्या किया, दोबारा रिपीट कर दिया क्या जो शैलेश सर ने बताया था, डेटा शीट्स। I probably thought that this slide is also important for the identification of the SC or the switches or for the selection of the switches. और मैंने एक एरो भी लगा रखा है यहाँ पे, वो एरो लगा रखा है कहाँ पे, करंट रेटिंग्स पे लगा हुआ है। सो बेसिकली आप जब मार्केट में जाओगे कि भाई मुझे 1 एम्पियर करंट रेटिंग्स वाला कुछ स्विच चाहिए, है ना, तो उसके पहले यू हैव टू सर्च ऑन द वेबसाइट और सम जर्नल्स और सम मटेरियल्स कि भाई इसका रेटिंग्स क्या है। और अब अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, 1 एम्पियर से लेके 50 वोल्ट वाला भी मिलेगा और 1000 वोल्ट वाला भी मिलेगा, है ना। उसमें दूसरा एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, -65 to 175 डिग्री सेल्सियस। सो 2-3 पॉइंट्स वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू कंसिडर। जैसे कि वोल्टेज रेटिंग होता है, मेनली रिवर्स वोल्टेज कितना होता है। फॉरवर्ड की चिंता नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड तो 1.1 वोल्टेज या 1.2 जितना दे देंगे, 0.7 से ज्यादा इन योर डायोड केस, तो वो तो ऑन हो जाएगा। फॉरवर्ड में तो उसको देर इज नो प्रॉब्लम, इन केस ऑफ द फॉरवर्ड इट विल कंडक्ट एज ए स्विच। बट रिवर्स में अगर वोल्टेज आता है 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, तो वो डायोड जिंदा रहना चाहिए। जिंदा आई मीन कि वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, और उसी कंडीशन में ऑफ भी रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं 50 वोल्ट दे देता हूँ 1 से, तो भी जिंदा रहना चाहिए, 100 देता हूँ, 200 देता हूँ, जैसे जैसे, और ये 1000 देता हूँ, तो भी ये जिंदा रहना चाहिए, it has to work, है ना। So 2-3 conditions we are looking at when we are reading the data sets. One is the voltage blocking capacity, another is the current carrying capacity, and the third is one of the most important, temperature. देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट सभी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ऑटोमोबाइल में चले जाओ तो वहाँ पे भी इंजन का टेम्परेचर होता है, अगर आप मशीन्स में चले जाओ तो मशीन का वाइंडिंग्स का टेम्परेचर होता है ना। अब कोई मैकेनिकल डिवाइस में जाओ, उसका भी हीट एंड टेम्परेचर, मैनी मैनी एवरीवेयर यू विल फाइंड द टेम्परेचर। तो ये मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ कि ये -65 175 का रेटिंग्स इसीलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपने एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिया, छोटा वाला प्रोजेक्ट, और आप सोच रहे हो कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, आपकी कंपनी सोच रही है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है जो अभी मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ, और आप इसको असम में बेचना चाहते हैं। तो असम का जो एटमॉस्फेयर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, वो अराउंड 55 समटाइम्स 50 के आसपास भी होता है। और इंडस्ट्री में ज़्यादातर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी बेचना है। और आपका पार्टनर जो बोल रहा है कि नहीं मेरे तो और भी ऑफिस जम्मू कश्मीर में भी है, तो उधर भी मुझे ये प्रोजेक्ट बेचना है, आई हैव टू स्टार्ट डीलरशिप ओवर देयर एज वेल। तो उधर का टेम्परेचर समटाइम्स टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो आपकी सर्किट है, वो दोनों जगह पे चलनी चाहिए। जैसे कि हाई टेम्परेचर रीजन में भी उसको चलना चाहिए और लो टेम्परेचर रीजन में भी चलना चाहिए।
है ना। और अगर आपका जो सिलेक्ट किया हुआ डायोड दोनों कंडीशन में काम कर सकता है इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, देन एंड देन यू कैन चूज द डिवाइस। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और बहुत सारी बातें ये डेटा शीट पे तो हम पूरा 1-2 घंटा डिस्कस कर सकते हैं, एंड विल अरेंज समटाइम्स लेटर ऑन, बट ये मुझे बताना था। ये 1 एम्पियर का केस हो गया। अगर मुझे ज्यादा करंट चाहिए तो और भी है, देखो 6 एम्पियर वाला है, इसमें भी टेम्परेचर रेटिंग दिया हुआ है और सब कुछ दिया है, लेकिन सी 1000 वोल्ट यहाँ पे नहीं लिखा है। और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, डू सम होमवर्क, कि प्रीवियस स्लाइड में 1000 वोल्ट तक जा सकते थे, है ना। 1 एम्पियर के साथ 1000 वोल्ट पे जा सकते थे। और यहाँ पे हमारा करंट रेटिंग 6 एम्पियर है, और 400 वोल्टेज रेटिंग पे चले गए, रिवर्स वोल्टेज में चले गए, है ना। सो ये भी है, ये डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको देखना है। उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स वन। अभी तक हमने क्या देखा, अभी डायोड कैसा होता है, डायोड में से और क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे डायोड्स की एक मैंने स्लाइड रखी थी कि मार्केट में ऐसे 3 पिन वाले, 2 पिन वाले, ऐसे ऐसे कुछ मिलते हैं। किसी को डायोड कहते हैं, किसी को स्विच कहते हैं, एससीआर कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, है ना। उसकी डेटा शीट होती है, वी हैव टू फाइंड आउट सम रेटिंग्स ऑफ द डिवाइसेस फ्रॉम द डेटा शीट। अभी एक थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट्स डिजाइन वन वोल्टेज रेगुलेटर। जो सेकंड वाले बच्चे हैं उसके लिए मैंने इंटेंशनली रखा हुआ है कि छोटी सर्किट, if somebody asks कि find out or design a circuit of 5 volt 1 ampere voltage regulator, तो कैसे करना है। तो आप गूगल में जाओगे तो यू विल फाइंड मैनी सच टाइप ऑफ सर्किट्स इजीली अवेलेबल राइट नाउ। मैंने भी वहां से लिया हुआ है। उसमें आपको देखना है कि भाई मेरा आउटपुट कितना वोल्टेज है। उस पर मैं थोड़ा 2-3 मिनट आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जब सिलेक्ट करते हैं डिवाइस तो कैसे करते हैं उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, है ना। और जैसे कि मेरे पास ये आईसी लगी हुई है, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसको कैसे कुछ मैं कलरिंग कर सकता हूँ। मेरा जो आउटपुट है ना, वो रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट। अभी मुझे 5 वोल्ट डीसी बनाना है। कहाँ से बनाना है, मेरे घर पे तो 230 आ रहा है, तो मुझे 230 में से कितना बनाना है, 5 वोल्ट बनाना है। और वो भी मुझे कैसा बनाना है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीसी वोल्टेज चेंज होता रहे, है ना। और ये कहाँ पे मेजरली यूज हो सकता है, यू कैन सिंपली से कि आपका वो जो फोन का जो चार्जर है, तो चार्जर का भी वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास होता है ना। तो ये सिंपली एज्यूम कि भाई मुझे मेरे फ़ोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर बनाना है, या फिर एक मुझे वोल्टेज सप्लाई बनाना है डीसी में। सी यहाँ पे एसी सप्लाई लगा हुआ है, आपको डीसी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी कौन सी डिवाइस है सेमीकंडक्टर मटेरियल जो मुझे 5 वोल्ट डीसी बना के दे सकती है और कांस्टेंट दे सकती है। तो फिर हम जब क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में आएगा कि भाई ऐसी कुछ आईसी होती है जो IC705 जिसका नाम है, तो वो आईसी आपको 5 वोल्ट बना के दे देगी। तो देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट आईसी। फिर आईसी को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका कुछ रेटिंग्स मिलेगा फिर से, कि भाई इनपुट कितना वोल्टेज देना है, आउटपुट कितना वोल्टेज देना है ना। तो यहाँ 5 वोल्ट मुझे लाने के लिए इनपुट में कम से कम मुझे 7 वोल्ट चाहिए इनपुट। तो मेरा आउटपुट ऑफ द आईसी इज 5 तब तक हो सकता है जब तक मेरा इनपुट 7 के आसपास हो। 7 से जब ज़्यादा भी हो सकता है तो कोई इश्यू नहीं है, द आईसी विल मैनेज। अगर 7 से ज़्यादा भी इनपुट दे दिया, 10, 12, 15, फिर भी आईसी क्या करेगा कि आउटपुट में आपको 5 ही वोल्ट देगा, ये उसका काम है। तो अभी यहाँ इनपुट और 2 कैपेसिटर भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये भी आईसी में डेटा शीट पे लिखा होगा कि आपको बेटर आउटपुट चाहिए तो क्या कुछ लगाना है फॉर द कैपेसिटर। और सेकंड थॉट ये भी है कि एक फिल्टर है, जैसे कि आउटपुट में मुझे डीसी ही चाहिए, एसी नहीं चाहिए, तो एसी को मैं बाईपास कर सकता हूँ। तो यहाँ 7 वोल्ट चाहिए, मतलब ये आगे वाला जो स्टेज है मेरा रेक्टिफायर का, जो आप लोग पढ़े हो, है ना, कि भाई रेक्टिफायर क्या है,
तो 4 डायोड को आप लगा के एक ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हो, तो उसका आउटपुट मुझे कम से कम 7 वोल्ट चाहिए, ये रेक्टिफायर का आउटपुट। तो 7 वोल्ट रेक्टिफायर लाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा भी इनपुट में कितना देना है, इनपुट में मुझे कितना देना है। तो इनपुट में अगर मुझे कितना देना है उसका क्वेश्चंस पढ़ना है, तो आई हैव टू गो इन डिटेल ऑफ द थियरी ऑफ रेक्टिफायर। थियरी में क्या बताता है कि उसमें एक इक्वेशन आता है, अगर आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, कि भाई व्हाट इज द वी आउटपुट इज 2 टाइम्स वी एम अपॉन पाई। ये एक सिंपल इक्वेशन है, 2 टाइम्स वी एम अपॉन पाई। तो वी एम क्या होता है, तो इनपुट का जो ये इनपुट है उसके लिए उसका वी एम जो होता है वो पीक वोल्टेज बोलते हैं उसको, पीक वोल्टेज होता है। तो आपको एक इक्वेशन बना के वी डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस वी एम बाई पाई, उसमें वी डी सी तो आपके पास है 7 वोल्ट आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, तो वो लगाना है, यू विल गेट सम आउटपुट, और इनपुट कितना देना है उसकी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। उसी हिसाब से आपको 7 से 8 तक और 9 तक यू कैलकुलेट इट, यू विल गेट सम 7-8 वोल्टेज एज एन इनपुट, कि आपको यहाँ अगर 7 लाना है ना, तो आपको यहाँ पे कम से कम 7 से ज़्यादा 8 और 9 का चाहिए, एसी वोल्टेज इनपुट में इतना चाहिए। फिर आप मार्केट में चले जाओगे तो मार्केट में ये ढूंढना पड़ेगा भाई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी आपको कैसा चाहिए कि जो 230 में से 7 बना के दे, ऐसा चाहिए आपको। तो 230 से 7 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 230 से 7, तो 7 वाला ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, तो 9 वाला मिलेगा, है ना, 12 वाला मिलेगा, 18 वाला मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट, और 7 वाला भी मिल सकता है, बट आपको डिजाइन करवाना पड़ेगा, यू हैव टू डिजाइन इट, स्पेसिफिक डिजाइन करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा कि 230 में से 7 वाला तो ऐसे ऐसे करके यू हैव टू रिवर्स गो टू द रिवर्स प्रोसेस। 5 वोल्ट में से आपको 230 में से 5 कैसे लाना है, ऐसे करके यू हैव टू डिजाइन द सर्किट एंड सिलेक्ट द डिवाइसेस, है ना। अब ये बात हो गई वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन की। अभी आपने मार्केट में देखा होगा कि भाई 2 एम्पियर वाला भी चार्जर मिलता है और 1 एम्पियर वाला भी चार्जर मिलता है, 1.5 एम्पियर वाला भी चार्जर मिलता है ना। आपको शायद पता होगा कि भाई जैसे जैसे एम्पियर का रेटिंग बढ़ता है वैसे उसका कीमत भी बढ़ता है, प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर 2 एम्पियर का चार्जर आप लेने जा रहे हो तो 300 350 रुपये का शायद मिलता है मार्केट में, बट अगर उससे 1.5 और 1 एम्पियर का लेने जा रहे हो यू विल गेट इट इन 100 और 150 रुपीज। तो ये सब माजरा क्या है, ये भाई करंट बढ़ता है तो क्या होता है, तो जैसे करंट किसी डिवाइस का बढ़ता है वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती है, पहला तो ये हो जाता है। सेकंड, जैसे करंट बढ़ता है, करंट कब ज़्यादा बढ़ता है, जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है, उसकी स्पीड भी बढ़ती है मूवमेंट करने की, पी से एन में, एन से पी में। तो ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा मूवमेंट, उसी के कारण क्या हो जाता है कि उसमें कोलिजन होता है, हीट जनरेट होता है और फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है पीएन जंक्शन है, तो हीटिंग का भी इफेक्ट उसमें ज़्यादा रहता है, प्रोटेक्शन का भी इशू रहता है। तो मतलब यहाँ पे मुझे ज़्यादा करंट चाहिए, तो मेरे डिवाइस का सिलेक्शन भी ऐसा होना चाहिए जैसे कि मुझे 2 एम्पियर का बनाना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई IC7805 ये 2 एम्पियर देता है कि नहीं देता है। अगर वो देता है तो फिर ये जो मेरा डायोड है वो 2 एम्पियर देता है कि नहीं देता है ना। जैसे हमने 1N4007 वाली बात कही थी, उसमें तो 1 एम्पियर वाला ही डायोड था, तो वो तो 2 एम्पियर का चार्जर उससे नहीं बना सकते। वी हैव टू सेलेक्ट अनदर डायोड जिसके पास 2 एम्पियर की कैपेसिटी है, उसको लेके आना पड़ेगा मार्केट से। उसके बाद चलो ये भी डायोड भी मिल गया हमको, है ना, तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ट्रांसफार्मर के पास भी थोड़ी कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना, कि 2 एम्पियर पास आउटपुट में दे। तो अगर अभी जो आप जो ट्रांसफार्मर लेने जा रहे हो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, दैट इज हार्डली 500 मिली एम्पियर, हाफ एम्पियर की रेटिंग के साइज के मिलता है।
तो अगर if you increase the rating of current capacity of a particular transformer, then the cost is also increased. तो ऐसा सब सिलेक्शन करना होता है। और लास्ट मैंने दो बात यहाँ पे डिस्कस की है कि क्या सिलेक्ट करना है, क्यों सिलेक्ट करना है। तो वन थी वोल्टेज रेटिंग्स, सेकंड थी करंट रेटिंग्स। तीसरी बात कर लेते हैं कॉस्ट। अगर कॉस्ट के बारे में आप देखेंगे तो कॉस्ट कितनी हो सकती है ना? अगर IC 7805 लेने के लिए जाओ तो आपको क्या मिलेगा, कितने रुपीस में, 10 to 20 रुपीस। एक डायोड आप 1N4007 वाला लेने के लिए जाओगे तो आपको 1 एम्पियर 1 रुपीस 2 रुपीस में मिल जाएगा, है ना। इसका मैं लगा रहा हूँ 20 रुपीस। इसका 4 डायोड है तो मैं 4 और 8 रुपीस यू कैन ऐड। ये 3 कैपेसिटर है, 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक के भी मिल जाएंगे आपको, है ना। वो 10 रुपये और भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है वो 30 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा पहचान वाला हर रोज़ कहीं से लाएंगे तो थोड़ा कम भी हो सकता है। और मेगा और मेजर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके ज़्यादा है तो देन होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको डिस्काउंट हो सकता है। तो टोटल मिला दो आप, हाउ मेनी रुपीज़, 30, 20, 40, 50, 60, है ना। 60-70 रुपीज़ में यू कैन डिज़ाइन योर ओन चार्जर। और भी कुछ ज़्यादा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी डिवाइस सेलेक्ट करके 100 रुपीज़ के आसपास आप बहुत बढ़िया वाला चार्जर या फिर कुछ एनी अदर सर्किट्स यू कैन डिज़ाइन, है ना। तो मार्केट में लोगों ने क्या किया, अभी ऐसा छोटा चार्जर बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया और लॉट्स ऑफ मनी उसमें से अभी वो लोग कमा रहे हैं, है ना। हम तो इंजीनियर है, भले अभी पढ़ा नहीं है लेकिन हम कुछ सोच के पढ़ेंगे ना कि भी ये सब मुझे कहाँ लगाना है। मैडम हमको ये फिजिक्स में ये क्यों पढ़ा रही है, पीएन जंक्शन डायोड का हमको मतलब तो है ना। तो ये सब बातें याद करते आगे जाना है ना। So let's move to the next, that there is a selection of the IC। ऐसी IC आपको मिलेगी मार्केट में, है ना। देन एक और बात है कि अभी मार्केट तो जैसे जैसे डे बाय डे कुछ एडवांस होता जा रहा है। आप एक डायोड को पढ़ के आए और दूसरे दिन नया डायोड मार्केट में आ जाएगा। यहाँ पे एक थॉट ऐसा है कि इफ़ यू हैव टू सिलेक्ट 4 डायोड्स, उसकी जगह पे आप एक ऐसी IC मिलती है जिसमें 4 डायोड इनबिल्ट होते हैं, उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, 4 डायोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो इजीली अवेलेबल, है ना। सो ये सब एक बातें थी कि प्रोजेक्ट को कैसे करना है और मार्केट में कैसे डिज़ाइन करना है एज ए स्टूडेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स को। फिर मैंने ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर से एक लगा रखा है क्योंकि वो भी एक डिवाइस है और आपके सिलेबस में है और आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसलिए मैं ये स्लाइड पे थोड़ा बोल दूंगा। जैसे कि आप एनिमेशन देख रहे हैं कि एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ है, पुश बटन प्रेस करते हैं तो बेस, ये ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। बेस में जब सिग्नल जाएगा तभी ये ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो होगा और तभी हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स जब बल्ब इज ऑन एट दैट टाइम योर ट्रांजिस्टर इज ऑन, और जब बल्ब इज ऑफ एट दैट टाइम ट्रांजिस्टर इज ऑफ। एक सिंपल स्विच का एग्जांपल। व्हाट आर द अदर applications? Up or left hand side you can read it, digital and analog circuit is there, amplifier is there, cellular phone is there, regulator is there, integrated circuits are also there, then bigger circuits, microprocessors, microcontrollers, है ना, many other circuits। उसमें लास्ट में एक लिखा है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर, वो मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि जब भी अगर किसी का करंट गेन बढ़ाना होता है, अगर किसी को ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, करंट गेन बढ़ी, इंडस्ट्री में इसकी बहुत वैल्यूज है डार्लिंगटन पे, मेनली फॉर द फायरिंग सर्किट्स ऑफ द कंट्रोलिंग डिवाइसेस। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, है ना। यू कैन सी वन ऑफ द एनिमेशंस आई ब्रॉट फ्रॉम गूगल, इट लुक्स नाइस। एज एन इनपुट switch you can see the cursor of my computer that there is a switch. If you close this switch, the SCR, sorry, the transistor will be in conduction mode, है ना। So if it is in conduction mode, it will operate and our bulb is on. This is the basic application of the transistors, you can see, right? उसके बाद मैंने एक अनदर सर्किट रखी हुई है जहाँ पे यू हैव ए कंट्रोल इनपुट साइड, एक रजिस्टर लगा है, जैसे कि करंट बहुत ज़्यादा ना चला जाए तो हमारा ट्रांजिस्टर Q1 शायद मर जाएगा, है ना।
ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो उसके प्रोटेक्शन में एक लगा हुआ। फिर बाद में ये एक मोटर लगी है, छोटी सी मोटर लगी है। तो ये मैं इसलिए रखा है कि शैलेश सर ने हमको ये बताया था कि एक बॉडी डायोड होता है और एक फ्रीव्हीलिंग डायोड होता है। तो ये हमारा छोटा डायोड, अगर छोटा डायोड हमारा नहीं है हमारे पास तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने ये रखा था। उसको मैं बता रहा हूँ आपको कि यू एज्यूम दैट कि ये जो डायोड D1 है, ये D1 डायोड नहीं है हमारे पास, सपोज, है ना। ये D1 डायोड जो है वो अभी शायद नहीं है हमारे पास। भूल जाओ, भूल जाओ कि हमारे पास कोई डायोड नहीं है अभी। तो अभी क्या होगा, जब इसको मैं सप्लाई दूंगा इनपुट में, तभी करंट मेरा जो है ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा, कहाँ पे, ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर विल बी टर्न ऑन एंड सो दैट द मोटर विल गेट सम करंट, एंड मोटर क्या करेगी, घूमने का स्टार्ट कर देगी। और मोटर घूमेगी, हमको अच्छा लगेगा, भाई चलो काम चल रहा है, हो गया, बहुत बढ़िया। फिर हमने ये ट्रांजिस्टर का गेट सिग्नल हमने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर जो था वो ओपन हो गया, जैसे ऐसे ओपन हो गया। तो अभी इसमें से करंट नहीं जा रहा है, मतलब जो मोटर में जो करंट जा रहा था उसकी वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई थी। उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। मशीन्स वाले जो लोग हैं उसको शायद पता होगा। सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द मशीन्स, इंडक्टर यू कैन से। तो अभी ये जो एनर्जी बची हुई है, वो एनर्जी बची है, अभी वो जाएगी कहाँ, तो वापस सोर्स में तो जा नहीं सकती, है ना, ऐसे तो जा नहीं सकती। तो वो कहाँ अटैक करेगी, सीधा ट्रांजिस्टर पे अटैक करेगी। All the energies will be restricted on the emitter terminal, sorry, collector terminal of the transistor. तो सारी एनर्जी अगर ट्रांजिस्टर पे चली जाएगी, तो ट्रांजिस्टर में तो क्या होता है, ऐसा जंक्शन होता है ना, ऐसे ये पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है। और अगर ये टर्मिनल, तो ये यहाँ एंटर कर जाएगी, तो ये जो बीच वाला जंक्शन है उस पर अटैक करेगी। बीच वाला जंक्शन पे अगर अटैक करेगी, तो जंक्शन तो इतना बहुत स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी रेती सीमेंट की दीवार बनाई रखी है ना। इट इज ए सिंपल बैरियर। तो वो टूट सकता है, आई मीन द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांजिस्टर विल टेक प्लेस। क्यों, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डायोड नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, है ना। तो अभी आपको डायोड लगा के देख सकते हैं कि अगर मेरे पास डायोड है, तो ये जो एनर्जी होगी वो ट्रांजिस्टर में जाने के बजाय कहाँ चली जाएगी, डायोड में चली जाएगी, फिर वापस मोटर में आ जाएगी, ऐसी घूमती रहेगी ना, ऐसी घूमती रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, मोटर ज़्यादा रोटेट करेगा, क्योंकि अपनी एनर्जी से खुद रोटेट कर लेगा, और हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो बच जाएगा ये। तो ऐसी तो इंडस्ट्री में सो मेनी एप्लीकेशंस है जहाँ पे यू हैव टू सेव योर मशीन्स, है ना, व्हेन द अदर स्विचेस आर टर्न ऑन। तो ये एक बात थी जो मुझे बतानी थी कि आप डायोड को इतना छोटा मत समझो कि भाई ये पी और एन मटेरियल है, उसको क्या करना है पढ़ पढ़ के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस। इफ द बेसिक concept of the PN junction diode is clear, then you will be the master of semiconductor, as I told you। क्योंकि पीएन में से पीएनपी बनता है, पीएनपी में से पीएनपीएन बनता है, और भी उसमें से बहुत कुछ बनता रहता है। तो ये बात थी जो बतानी थी। देन मैंने एक अनदर डिवाइस लिया हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। आई होप दैट यू शुड बी हैव सम पेशेंस, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे स्लो जा रहा हूँ। और डॉक्टर GS पटेल, प्लीज कॉल मी इफ आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। सो अनदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने रखा हुआ है। तो ये आया जब मार्केट में, जैसे डायोड आया, ट्रांजिस्टर आया, मैनी अदर स्विचेस आए, उसके बाद ये भी आया। तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। सी, अगर आपके पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स है और उसको मिला देते हो, ये इतने सारे ट्रांजिस्टर आप मिला देते हो, यू कैन सी द कर्सर, इतने सारे ट्रांजिस्टर आप मिला देते हो, तो आपको एक ऐसी आईसी बनता है ना। अगर आप एन NPTEL के लेक्चर देख रहे हो, जो IITs के लेक्चर्स होते हैं, उसमें आप ओपेम को पढ़ेंगे, तो उसमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई है, यू विल बी हैप्पी टू नो दोज हु आर इंटरेस्टेड।
what is the main point? That many number of transistors are clubbed together on a single substrate or some surface, and they design the operational amplifier. तो ये क्या करता है? तो इसका मैं पढ़ूंगा नहीं अभी, ये तो बहुत सारी एप्लीकेशंस इधर लिखी है. I will not go in detail of study, but one animation you can understand. There is input signal somewhat lower value, and at the output side you will get some high value of the voltage or the signals, है ना. इसका सिंपल एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं. छोटा सिग्नल अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ और आपको ज़्यादा सुनना है, बड़े आवाज़ में सुनना है, जैसे माइक्रोफोन होता है, स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर होता है, वो सभी जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी कुछ बातें हाईलाइट की रखी हुई है, जैसे कि इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल, है ना. मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करता है, जैसे ऐड करता है, सब्सट्रैक्ट करता है. जो मैथ्स वाले टीचर हमको पढ़ाते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, उसको हम इलेक्ट्रिकल में कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैसे ऐड करें, है ना. दो सिग्नल का मैथमेटिकल सॉल्यूशन कैसे लाए, उसका भी ये यूज कर सकते हैं हम. देन एक्टिव फिल्टर्स होता है. हम जब कुछ सर्किट बनाते हो, देयर में भी सम नॉइज एंड ऑल दैट, तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ फिल्टर सर्किट लगी रहती है. सम ऑसिलेटर्स आते हैं जिससे हम जितनी चाहे उतनी फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं. एम्पलीफायर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, और ये लास्ट लिखा है प्रिसीजन रेक्टिफायर्स. आई होप कि आप ये सेशन खत्म हो जाए, जब थोड़ा फ्री हो जाए तो प्रिसीजन रेक्टिफायर एक बार बना लेना. और सर्किट्स अवेलेबल ऑन द गूगल, क्योंकि प्रिसीजन रेक्टिफायर एक परफेक्ट आपको डीसी वोल्टेज देता है. वो आपको कहीं पढ़ना मिलेगा. जैसे कि एडिशन करना है तो एक सर्किट मैंने रखी हुई है कि 3-4 सिग्नल आप दे के एडिशन करके एक नया सिग्नल बना सकते हो. मैंने एक रखा है इंटीग्रेटर सर्किट, जैसे आप सो देख सकते हो दैट इनपुट इज स्क्वायर वेव व्हाइल द आउटपुट इज अ ट्रायंगुलर वेव. आप सिग्नल का शेप बदल सकते हो. देन ये सारे सिग्नल्स जब आगे पढ़ते पढ़ते जाओगे तब समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. उसके बाद एक मैंने ये भी रखा हुआ है फेज शिफ्टिंग ऑसिलेटर. अगर आपको सिग्नल का शिफ्टिंग करना है, डिग्री एंगल चेंजेस करना है. और एक मैंने रखा हुआ है कि भाई व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, है ना. इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर, जैसे कि आप कोई प्रेशर मेजर करना है, ये सभी इंजीनियर्स को जरूरत पड़ेगा. आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप देखेंगे, तो इसमें भी आपको ये सब मिलेगा. इसमें भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है. दैट मीन्स इसमें भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है. जैसे शॉप में जाते हो और वेट मेजरमेंट करने, दुकानदार के पास जो वेट मेजर करना होता है, उसमें भी ये सर्किट लगी रहती है. मेडिकल में जाते हो तो आपको सभी डिवाइस पे ये सब सेमीकंडक्टर, आई मीन सभी जगह पे सेमीकंडक्टर अगर आप ढूंढोगे तो यू विल फाइंड आउट. देन मैंने एक अनदर डिवाइस लिया रखा है कि ऑप्टो कपलर. किसी ने लास्ट लेक्चर में शायद पूछा था ऑप्टो कपलर और समथिंग, है ना. तो उसका एक बहुत सारे सर्किट्स अवेलेबल ऑन द नेट, बट ड्यू टू सम लिमिटेड टाइम मैं ये रख पाया हूँ. इसका लॉजिक क्या है कि जैसे देखो इनपुट में आपको 1 होता है तभी आपकी मोटर घूमने लगती है, ऐसा एक लॉजिक बैठता है एज पर सर्किट. When the input is 0, the motor will stop. Now see how the signal is traveling. यहाँ से एक डायोड लगा रहता है इनपुट में और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा है, लेकिन बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. यू सी हार्डली यू हैव सीन एनी वायर, कोई वायर नहीं लगा है दोनों के बीच में, है ना. तो ये विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ लाइट एमिट करते हैं. इफ यू सी माय कर्सर, द लाइट एमिट करती है. वो जो लाइट का सिग्नल है, वो सिग्नल इसके लिए एक वोल्टेज सिग्नल बनता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसको ऑन कर देता है. तो विदाउट एनी कनेक्शन से एक दूसरे से अलग रहते हैं. ऐसा करने की जरूरत भी पड़ी है. क्यों? क्योंकि अगर आप सोच लो कि ये जो आपकी मोटर है वो 100 एम्पियर की मोटर या 50 एम्पियर की मोटर है ना, और यहाँ पे आप जो सिग्नल दे रहे हो तो 5 वोल्ट का या 500 मिली एम्पियर का दोनों का है. तो बाई चांस ऐसा भी हो सकता है ना कि 100 एम्पियर का करंट इधर चला जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारी ये जो सर्किट डिवाइसेस है वो सब उड़ जाए, डैमेज हो जाए. तो हमको दोनों को क्या करना पड़ता है, हाई पावर सर्किट एंड लो पावर सर्किट को हमको आइसोलेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना पड़ता है. तो ये आइसोलेटर जैसे कि एक हमको क्या कुछ भगवान हमको वरदान देता है, ऐसा वरदान है. अगर आइसो क्यों, क्योंकि अगर आप देखें कि ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज और करंट सब होता है वो सब हाई रेटेड होता है.
और हम जो कंट्रोल करते हैं, हमारे पास जो सर्किट होती है उसका करंट रेट लो होता है। आप इंजीनियर है, आप कोई सर्किट पे काम कर रहे हैं, तो इन बिटवीन जो पावर रेटिंग डिफरेंस होता है, करंट डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, तो वो आइसोलेट रखना पड़ता है, नहीं तो हाई करंट आपके यहाँ आ सकता है आपकी सर्किट में। इसका रेटिंग पता है कितना वोल्टेज हाई कर सकता है? तो 2.5 केवी, 2500 केवी तक वो आइसोलेशन दे सकता है ना। तो ये नथिंग न्यू दैट द सेम सर्किट आई हैव इंसर्टेड, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट इज ऑप्टो कपलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर मैंने रखा है एक माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस। हम क्या करने जा रहे हैं, आप किसी को सोच नहीं है क्या क्या मैं देख रहा हूँ अभी। अरे भाई, हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर डायोड से लेके, ट्रांजिस्टर से लेके, ऑप्टो कपलर से लेके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से लेके, हम एक ऐसी भी एक आईसी बनी हुई है जिसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो, डाल सकते हो, और उसके कुछ पिंस में से आप सिग्नल लेके बाकी के डिवाइसेस को आप ऑपरेट कर सकते हो। और इंडस्ट्री में माइक्रो कंट्रोलर बेस तो बहुत 10-15 सालों से इतना चला, लोगों ने बहुत सारे रुपये कमा लिए। आप एक माइक्रो कंट्रोलर पढ़ो, उसके डिटेल पढ़ो, उससे थोड़ी सर्किट बनाना सीख जाओ। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल की कुछ बात है, सो मेनी सिग्नल्स आर देयर, तो सभी सिग्नल्स को आप कैसे ऑपरेट करते हो, कोई पहले ऑन होता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ऑन होता है, वो सब क्या है, वो सब प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है। कि आप जब उधर बैठते हैं कि भाई बाइक लेके खड़े हैं ट्रैफिक सिग्नल पे और देख रहे हैं कि अभी 67 सेकंड बाकी है, 64, 63, 60, 50, वो सब ये प्रोग्रामिंग से तो वहां दिखता है ना। तो आप यू हैव टू डिजाइन ए प्रोग्राम इन ए माइक्रो कंट्रोलर, इट इज नथिंग बट ए चिप स्मॉल आईसी, उसमें आपको प्रोग्राम डालना है, फिर सपोर्टिंग सब डिवाइसेस सर्किट आपको लगानी है, फिर वो आपको डिस्प्ले करेगा, है ना। सेम टू सेम सो मेनी मोटर्स यू कैन ऑल्सो कंट्रोल। से यहाँ पे मैंने एक लिखा है ऑप्टो आइसोलेटर है, यहाँ पे मॉस्फेट ड्राइवर है, ये मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, बहुत कुछ माइक्रो कंट्रोलर में कर सकते हैं, है ना। देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इसमें आप देख सकते हैं कि एक रेक्टिफायर है जो एसी से डीसी बना देता है, कोई डीसी है तो डीसी में से एसी भी बना सकते हैं, कोई चॉपर है तो डीसी टू डीसी बना सकते हैं। सो एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन यू कैन डू, आइदर एसी टू एसी, डीसी टू डीसी, डीसी टू सम, कुछ भी कर सकते हैं। इन्वर्टर सभी जगह पे अभी चल रहा है, मशीन ड्राइव में चल रहा है, हमारे घर पे जो एसी अभी लगा रहता है उसमें भी इन्वर्टर चलता है, तो हाई रेटेड जब जहाँ पे कुछ होता है सभी जगह पे चलाते हैं। ये मैंने एक रखा है कि कैसे वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। आप देखो, एक ही स्विच है, जो हमारा डायोड था, डायोड की जगह पे एक नया एरो आ गया। इसका मतलब है कि डायोड डायोड अपने आप काम करता था, ये डायोड है, ये एससीआर है, वो हम कंट्रोल करेंगे तभी होगा। तो हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, देखो इतना वोल्टेज, ये थर्ड लाइन, इतना वोल्टेज हमको चाहिए तो उतना ही कंट्रोल करेंगे, वी हैव ए कंट्रोल, है ना। ये डिटेल में आप आगे जाके पढ़ सकते हो, और यू कैन आस्क टू योर टीचर्स, और मुझे भी पूछ सकते हो आगे जाके, है ना। इन शॉर्ट, वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करना है ये सेमीकंडक्टर में चलता है ना। और एक सर्किट लगी रखी है, जैसे कि मुझे एसी मोटर को कंट्रोल करना है तो ये पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर जो होता है वो लगाया है। ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस तो है ना। यहाँ पे सब सर्किट फ्री है, वो सब इंडस्ट्री में यही चलता है भाई। इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर डिवाइस के बिना यू कैन नॉट कंट्रोल दी स्पीड ऑफ एसी मोटर। पहले मैकेनिकल से करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव जो कंट्रोल है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। उसके बाद सोलर आपने सभी जगह पे देखा है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सब जगह पे जाओ, सब सोलर की बात कर रही है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सब सब्सिडीज, है ना। तो सोलर पीवी सेल होता है, फोटोवोल्टेटिक सेल, उसमें भी सेमीकंडक्टर लगा रहता है, यू कैन सी। और जब सोलर में से जो एनर्जी बनती है, बनने के बाद भी उसको अगर हम चाहे, अभी चाहे नहीं, अभी तो ऐसा है कि हमको एनर्जी फीडबैक करनी है, किसको, ग्रिड सिस्टम को वापस, उसका पैसा हम में से कट हो जाएगा, तो वो भी हम सीधा या ट्रांसमिशन लाइन में दे सकते हैं। और अगर हमारे पास खत्म हो गई तो ग्रिड में से भी ले सकते हैं पावर, यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर है ना।
आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कैसे, विंड मिल कैसे घूमती है, और देखो विंड मिल का ये पंख मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एसी वोल्टेज जनरेट होगा, तो एसी वोल्टेज में से मैं क्या करता हूँ, डीसी बना के फिर से एसी बना के मैं किसको देता हूँ, वापस ग्रिड में देता हूँ। कोई सोचेगा भी एसी बन रहा है तो सीधा एसी में से एसी दे दो, क्या प्रॉब्लम है? उसकी भी बहुत सारी बातें हैं, अभी टाइम नहीं है, लेकिन बाद में देखेंगे। डायरेक्ट एसी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो पंखा जो घूम रहा है, विंड मिल जो घूम रही है, उसकी स्पीड डिफरेंट है, तो उसका जो एसी सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है, so that the output or frequency of the signal is different than the required frequency of the grid की तो 50 हर्ट्ज की लगी रखी है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये डिफरेंट स्पीड की वजह से सेम 50 में लाना पड़ता है, इसलिए वी नीड वन कन्वर्टर विच विल कन्वर्ट इनटू दी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी होता है ना। फिर मैंने रखा व्हीकल टू ग्रिड और ग्रिड टू व्हीकल। ये अभी आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, मेरा एक दो स्टूडेंट से भी बात हुई थी, दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। V2G मतलब व्हीकल टू ग्रिड, एंड G2V मतलब ग्रिड टू व्हीकल्स, है ना। ये ग्रिड मतलब ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पे एसी सप्लाई अवेलेबल है, उसको एसी में से डीसी करना है तो सेमीकंडक्टर चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, यू नीड सम कन्वर्टर सर्किट्स एंड ऑल दैट। फिर आप इसको कार में लगा दो, कार विल वर्क। अगर आप पूरा 24/7 तो कार लेके घूमते नहीं हो, कभी तो कार को रखोगे ना घर पे। सो वैन द कार आपकी 1 घंटे के लिए ऑफिस टाइम पे चलती है, बाकी के टाइम पे एनर्जी जो कार में है उसको भी आपको रीयूटिलाइज करना होता है, तो उसके लिए भी यू नीड अनदर सर्किट्स, कि भाई कार में जो वोल्टेज है वो तो डीसी है, तो उसको एसी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी एक कन्वर्टर सर्किट। और अगर कार से लेके हम सीधा हो लोड, या फिर यू कैन से होम, होम में भी वो यूज कर सकते हैं, उसमें से आप ग्रिड को भी वापस दे सकते हैं अगर इफ यू हैव एक्सेस एनर्जी, है ना। होम में से वापस कार में ले सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कार की जो रूफ होती है वो भी सोलर रूफ होती है, तो वो कार विदाउट कनेक्टिंग विद द ग्रिड और इवन विद द होम, वो कार अपने आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि सनरूफ से सोलर पैनल उस पर लगी हुई है तो उसमें एनर्जी मिलेगी, तो उससे भी एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी को हम फीडबैक टू द सोर्स, फीडबैक टू द होम, फीडबैक टू द ग्रिड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें इसमें चल रही है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। उसके बाद एक सिलिकॉन कार्बाइड जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका भी ये बाप है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैडम ने बताया था, एक क्वेश्चन में पूछा था कि भाई ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का डिफरेंस क्या होता है, तो बैंड गैप, जो बैंडविड्थ होती है वो डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो द सेकंड लाइन, एनर्जी गैप दैट इज 1.12 इन सिलिकॉन, बट इन केस ऑफ द सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल 3.26, ऑलमोस्ट अराउंड थ्री के आसपास, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटी है, ज़्यादा करंट कैपेसिटी है, स्विचिंग रेट भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बहुत कुछ एडवांटेजेस सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल में मिल रहा है, और फ्यूचर में इस पर थोड़ा काम चलेगा। अब ये सब बातें हमने सोच ली कि भाई कुछ डिवाइसेस देख लिए, थोड़ा आइडेंटिफाई करना सोचा, कुछ सर्किट बनाने की सोची, कहाँ कहाँ पे हम कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल में देख सकते हैं, इंडस्ट्री में देख सकते हैं, सोलर विंड से लेके V2G से लेके, तो हमारे पास कुछ साधन सामग्री तो होना चाहिए ना। तो वी शुड हैव सम स्मॉल किट, जो किट हमने खोली थी उसमें कुछ रखना चाहिए, जो बैग हमने खोली थी उसमें कुछ रखना चाहिए। आप अभी स्टूडेंट्स हो तो ऐसा करो, बहुत सारे पैसे इधर उधर थोड़ा इसमें भी डालो, है ना, थोड़े इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लो, अपने काम आएंगे प्रोजेक्ट्स के लिए, सभी के लिए, है ना। सोल्डरिंग आयरन भी आपको परचेज करना चाहिए, घर पे बैठ के भी कुछ बना सकते हैं। मल्टीमीटर तो अब करना ही करना चाहिए, घर पे वोल्टेज मेजर करना है, किसी में मेजर करना है ना। कुछ ब्रेडबोर्ड ले लो तो आप सर्किट को डिस्कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके कर सकते हो, है ना। ये बीच में एक सर्किट में एक मीटर होता है, क्लैंप-ऑन मीटर, करंट मेजरमेंट के लिए वो इजी रहता है। ये मीटर से करंट मेजर करना इतना इजी नहीं है, और उसका रेटिंग भी कम रहता है, तो ये थोड़ा इजी रहता है, यूजर फ्रेंडली होता है, क्लैंप-ऑन मीटर्स, है ना। वायर्स ले लो, कुछ स्क्रू ड्राइवर्स ले लो, ये सब बैग में थोड़ा भर दो, है ना। एक और बात भी आप देखना सेमीकंडक्टर मटेरियल की, कि पीसीबी लेआउट, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये भी हमको जानना पड़ेगा कि ये सब डिवाइस तो लाएंगे, सब सिलेक्ट कर लिया, फिर लगाएंगे कहाँ पे।
तो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आती है, उसको हम डिजाइन करना होता है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका सब जगह पे कुछ मटेरियल भी अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, यू सर्च इट, है ना, कि कम स्पेस में अच्छे से कैसे उसको एडजस्ट करें, फिर आपकी सर्किट बन जाएगी, बहुत बढ़िया लगेगी, है ना। सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर यू विल फाउंड आउट, है ना। और आप देखो सेमीकंडक्टर एप्लीकेशंस ये स्लाइड में, तो यू विल गेट एवरीवेयर देयर इज अ यूज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, है ना। यू कैन टेक इट्स इंडस्ट्रियल लोड, व्हीकल ले लो, घर ले लो, है ना, सभी जगह पे यू विल फाइंड आउट द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू कैन डू दैट, वाटर लेवल कंट्रोलर बना सकते हो, कार पार्किंग गार्ड सर्किट बना सकते हो, सेल्फ फोन डिटेक्टर, टेम्परेचर अभी आप बना सकते हो, है ना। जब फ्री हो तब सोच सकते हो, यू शुड सर्च इट ऑन गूगल एंड फाइंड आउट समथिंग, यू शुड विजिट लाइब्रेरी, सम मैगजीन्स आर अवेलेबल जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू एंड अदर्स, उसमें से भी कुछ सर्किट आपको मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो, है ना। तो ये सब सेमीकंडक्टर की दुनिया है जहाँ पे एंडलेस बातें कर सकते हैं डिटेल में जाके, है ना। बट टाइम कंस्ट्रेंट विल, आई थिंक विल सी सम रेफरेंसेस, आप देख सकते हो, है ना। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करते हुए रुकता हूँ। और डॉक्टर जी एस पटेल, शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड? योर माइक इज म्यूट। Yes, sir. You can go on last slide. Thank you very much. Okay. Uh, those who are students, the link is here, and you can attend the quiz. First of all, thank you very much, Mr. Vinod Makwana, sir. Right now, I am inviting Mr. Sailesh, sir, to give the vote of thanks to our eminent speaker, Makwana, sir. Dodiani, sir. Yes, yes. Thank you very much, C.S. Patel, sir. Uh, very good and very useful interactive section that was delivered by Sri Vinod and Makwana, sir. Especially that slide that is designing of power supply, DC power supply. That is most useful, I think, for a first year students because there is a lot of component instruments are available. So how we can choose the particular component. So that is effectively delivered by Manasa. And overall, the overview of semiconductor device is also very useful for a particular first year student. So thank you very much, Sri Vinod Makwana, sir, for delivering such a valuable presentation. Thank you. Makwana, sir, there is one question. One question is, what is Makwana, sir? Yes. There are some questions. One is, what is V2H stand for? V2H, that is vehicle to home. If you have some excess amount of battery voltage inside your vehicles and you want to utilize at your home, then you need some circuit which can convert your existing voltage of vehicle into the useful voltage of your home. Simply home में क्या होता है कि AC वोल्टेज चलता है, और अगर व्हीकल है तो उसमें ज़्यादातर DC वोल्टेज रहता है, तो DC से AC कन्वर्ट करने वाला कुछ सिस्टम होना चाहिए, वो V2H होता है। Okay. One more question there, the application of semiconductor in automobile industry or in automobile car like. ऑटोमोबाइल के, अरे ऑटोमोबाइल में तो अभी आप देख लो, इतनी सारी व्हीकल की जो इंडस्ट्रीज है अभी लॉन्च हो गई है ना, टोयोटा से लेके मैनी अदर्स। और ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, हाइब्रिड व्हीकल्स पे सेमीकंडक्टर की सर्किट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सम मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स
ऑटोमोबाइल के, उसको ऑटोमोबाइल से ज़्यादा इसमें अभी व्हीकल वाली जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल से लेके ग्रिड टू व्हीकल्स, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए रखा था कि ऑटोमोबाइल के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो उसमें है ही है, क्योंकि वो कन्वर्टर्स वो सब लगा रहता है। तो आप व्हीकल्स की बात देखो, बहुत सारी बातें उसमें है, रिन्यूएबल से लेके ग्रिड से लेके वहाँ व्हीकल्स में आपको मिलेगा ऑटोमोबाइल्स, और ये सेमीकंडक्टर मिलेगा। Okay, thank you, sir. Right now we have our principal sir, Sangani sir. So I welcome you, sir, and thanks for the giving the permission to organize such in short time to this webinar. So I also welcome you, sir. Sir, if you have few words with us. હલો, આવે છે અવાજ? આવે? Yes, sir. ઓડિબલ? You are audible. You are audible. હવે આ ક્યાં સેમેસ્ટર માટે આ અરેન્જ કરેલો હતો? સેકન્ડ કે ઓલ સ્ટુડન્ટ? First year specially, but there are so many students. Only. બરોબર. જનરલી ફર્સ્ટ યર માટે તો એમ ને? Yes. બરોબર. કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ હતા એવરેજ? Right now 89 participation is there. ઓકે. અને મેઇનલી ટોપિક આપણો સેમિકન્ડક્ટર. Yes, semiconductor and its application. સેમિકન્ડક્ટર and Its application. ઇટ્સ એપ્લિકેશન. Yes. કેવો રહ્યો રિસ્પોન્સ? કેવો રહ્યો આમ? Response is Student all over not. is good. Yes, student response is good, and you can see here that so much participation and so much question. અને સ્પીકરમાં તમે ગૌરાંગ સર, પછી No, મકવાણા Makwana sir, Purvi madam, and Doriani sir. અને પૂર્વી મેડમ. Yes, yes. બરાબર. અને રોજનું કેટલું 1 અવર કે 1.5 અવર? 1 hour. ડેઈલી 1 અવર. Yes. બરાબર. અને આ જે ટોપિક હતો એ સિલેબસમાં કવર થાય છે કે પછી આમાં? Yes. સિલેબસ માં બી કવર થાય છે, અને ઇન્ડસ્ટ્રી એપ્લિકેશન ઓફ યુટી પણ ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી ઘણી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. સરસ સરસ. તો આ કદાચ આપણે જે એસએસઆઈપી અને આ જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી એ ખૂબ સારા પ્રયત્નો થયા છે, કારણ કે એસએસઆઈપી પણ આ સિવાયના બીજા ઘણા વેબિનાર આ લોકડાઉનના પીરિયડમાં કન્ડક્ટ કરેલા છે, અને જે બધા વેબિનાર છે અને એના જે ટોપિક સિલેક્ટ કરેલા હતા એ સ્ટુડન્ટને કંઈ ઉપયોગી થાય, સ્ટુડન્ટ માટે ફ્રૂટફુલ હોય એ ટાઈપના ટોપિક હતા. અને આજનો જે આ તમારો વેબિનાર જે કમ્પ્લીટ થયો, 5 દિવસ હતો ને મારા ખ્યાલથી? 3 days. 3 days. તો એ જે સબ્જેક્ટ રિલેટેડ હતો કે ભાઈ એક સિલેબસના પાર્ટ તરીકે સ્ટુડન્ટનો સિલેબસ જે ઇનકમ્પ્લીટ હતો એ કમ્પ્લીટ કરાવવાના એક ભાગરૂપે આ સેમિનારનું આયોજન કરેલું હતું. તો આમાં જે કાંઈ પાર્ટિસિપન્ટ સ્ટુડન્ટ છે એ બધાને પણ હું ધન્યવાદ આપું છું, એનો આભાર માનું છું, કારણ કે આ લોકડાઉનના પીરિયડમાં એ આટલો ઇન્ટરેસ્ટ બતાવી અને આપણી સાથે કનેક્ટ થયા. એટલે એવું આપણે માની શકાય કે ભાઈ એને કંઈક શીખવાની ધગજ હશે, તો જ એ આ કન્ટિન્યુઅસ 3 દિવસ આપણી સાથે જોડાયેલા રહેલા હોય. અને આ તકે જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટ અને પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આ વેબિનારનું આયોજન કરવા માટે અને સ્ટુડન્ટને સબ્જેક્ટ રિલેટેડ ઉપયોગી માહિતી આપવા માટે. કારણ કે મેં થોડું 10-15 મિનિટ અત્યારે સેશન એટેન્ડ કર્યું મકવાણા સાહેબનું, તો ઘણું ઉપયોગી સેશન તમે આયોજન કર્યું હોય એવું મને લાગે છે. તો આ તકે ગૌરાંગ પટેલ સર, મકવાણા સાહેબ, ધોરિયાણી સાહેબ, પૂર્વી મેડમ અને તેમજ આની આ વેબિનારનું આયોજન કરવા માટે સીધી કે આડકતરી રીતે જે કોઈ સ્ટાફ સંકળાયેલા હોય એનો સર્વનો હું આભાર માનું છું. અને હજુ પણ આગળ કાંઈ સ્ટુડન્ટને ઉપયોગી થાય એવા પ્રોગ્રામ તમે આયોજન કરતા રહો એવી ઈચ્છા રાખું છું. થેન્ક યુ ઓલ. સર, વન મોર થિંગ, આપણી સાથે જીપી પાલનપુરના ડોક્ટર બીબી મોર સાહેબ છે. એમણે એઝ અ પેનાલિસ્ટ તરીકે આજે ફરજ બજાવી છે અને આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તો કોણ છે? બીબી મોર સર.
કઈ કોલેજ ને? જીપી પાલનપુર. જીપી પાલનપુર. સરસ સરસ. તો એ સાહેબે પણ કઈ સેશન ડિલિવર કરેલું એક પણ? નહીં, સાહેબે આખા બસ. 3 દિવસ આપણને પેનલિસ્ટ અને અમને એટેન્ડી તરીકે જોયું છે, એટલે આપણે એમનો ફીડબેક આજે લઈ લઈએ હમણાં. સો હેન્ડ ઓવર ટુ મોર સર, પ્લીઝ ગીવ સમ ફીડબેક. તો મોદી સાહેબનો પણ હું સંસ્થા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તો આ જે વેબિનાર હતો એમાં કઈ જીપી પાલનપુરના સ્ટુડન્ટ જોડાયેલા હતા કે પછી આપણા જ હતા? હા, નહીં, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ છે સર. ઓવરસીઝ આઉટ ઓફ ગુજરાત બી ઘણા સ્ટુડન્ટ છે. બરોબર. એટલે ફક્ત આપણા સ્ટુડન્ટ એવું નથી, બરોબર ને? ના ના, ઓલ ઓવર ગુજરાતમાંથી છે અને આઈ થિંક બિહાર બિહાર. અને એમપી ના પણ ઘણા સ્ટુડન્ટ છે. ઓકે, સરસ સરસ. એક ખૂબ સારો પ્રયત્ન અને ખૂબ એક સારી મહેનત કરી રહ્યા છો તમે બધા, પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટ, અને જે કંઈ સ્પીકર જે બીજી કોલેજના છે, મોહડ સાહેબ કે બીજા કોઈ જે કોઈ આપને સીધી કે આડકતરી રીતે ઉપયોગી થયા હોય એનો પણ હું પરિવાર સંસ્થા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ સર. બીજું મોર કંઈ? સર. નો નો, આપણે સાહેબ મોર સાહેબનો ફીડબેક જોઈએ, સાંભળીએ. આ ક્વિઝનું પણ આયોજન કરેલું લાગે છે. યસ હા સર. પ્લીઝ. બરોબર. મોર સર. હેલો. હા હા. હા, અવાજ આવે છે? હા હા, આવે છે આવે છે. હા, તમામ અહીંયા જે આયોજન કર્યું આપે એ ગાંધી કોલેજના આચાર્ય સાહેબ, ગૌરાંગભાઈ પટેલ સાહેબ, પૂર્વીબેન અને મકવાણા સાહેબ અને શૈલેષભાઈ ઢોલરિયા સાહેબ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખરેખર બહુ સરસ આયોજન કરી ગયો લોકડાઉન દરમિયાન. ખરેખર જેની જરૂર છે વિદ્યાર્થીઓ અને આપણા સ્ટાફ મિત્રોને પણ, એ તમામને મદદરૂપ થઈ શકે એવા ટોપિક ઉપર આપે જે અહીંયા આગળ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે એ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. તો ભવિષ્યમાં પણ આ રીતનું ધારો કે આયોજનની જરૂર પડે અને એમાં પણ કોઈ પણ જાતની મદદ કે એવી જરૂર પડે તો આપ ગમે ત્યારે કોન્ટેક કરજો. અને ફરીથી એકવાર મકવાણા સાહેબ, ગૌરાંગભાઈ સાહેબ, પૂર્વીબેન, શૈલેષભાઈ સાહેબ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને બહુ સરસ આયોજન. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ વેરી મચ. મોટ સાહેબ, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર સંસ્થા વતી, કારણ કે તમે પણ અહીંયા અમને મદદરૂપ થયા છો અને સેશન ડિલિવર કરેલું છે, તે બદલ તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ના ના સાહેબ, આપણે એક ફેકલ્ટી તરીકે આપણે હંમેશા હેલ્પફુલ રહેવું જ જોઈએ બધાને એકબીજાના કોન્ટેક્ટથી. ચોક્કસ. અને ખરેખર ખૂબ સરસ ચોક્કસ, આયોજન હતું ચોક્કસ. 3 દિવસ સુધી અને સારી માહિતી આપી. ધન્યવાદ સાહેબ. ના, બહુ ઉત્સાહી સ્ટાફ છે અમારો. હા હા, ના સારું છે સાહેબ, બહુ સરસ. અને વિદ્યાર્થીઓને પણ જે કોર્સ કે એવું કંઈ ટોપિક બાકી હોય તો એ પણ અત્યારે અહીંયા સંકલનમાં લઈ શકાય છે. હા, લઈ શકાય ને કવર થઈ જાય એટલે એના ડાઉટ કવર થઈ જાય સાવ છે. એકદમ હા, આઈડલ ખરેખર બેઠો બહુ. હોય. હા. ઓકે સર, તો આવજો. shall we stop here and